Good morning to all. Am I audible? Please, Good someone. morning, sir. Yes, sir. So I hope मैं सबको म्यूट नहीं कर रहा हूँ। ये आशा है कि मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक? अगर किसी को भी कुछ डाउट होगा तो मुझे पूछ सकते हो बीच में, राइट? So today I will start module 2 of okay, let me see how many of you are present. Okay, let us wait for 1 to 2 minutes, then I will start. सर बोर्ड पर पढ़ाइए ना सर। बोर्ड वाला वो क्लासरूम अवेलेबल नहीं है ना जिसमें कि माइक मतलब वो क्या कैमरा हो, तो सब करवाइए ना उसका। क्या सर हम लोगों का सेक्शन कब तक चेंज होगा? वो आज शाम तक हो जाएगा। ठीक है सर। हम ज्यादा करा मैं फिर शादी फोन करा हमारा सेक्शन ना चेंज हो चाहिए ये मैं 3 बार ऑनलाइन करा हम क्लास हम करे भाई हॉस्टल छोड़ दें। So I am starting today's class and क्लास में अच्छे से सुनना। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे मैसेज मतलब चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। एंड मैं यहाँ पे माउस यूज करके तुम लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। प्लीज हो गया गुड मॉर्निंग, अब बंद करो। गुड मॉर्निंग सर। तुम लोगों का इलाज करना पड़ेगा, रुको। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। So these are the outlines of module 2, what I will cover in the subsequent classes. The first of all is context-free grammar and context-free languages, their introduction, followed by derivation trees and past tree. Then I will discuss about ambiguities in grammar. I will discuss what do you mean by ambiguous grammar, right? Then we will discuss how to simplify a context-free grammar, where simplification means removal of useless symbols, elimination of null productions, and elimination of unit productions. So in the coming classes, I will discuss what do you mean by useless symbols and what do you mean by these null productions and unit productions, right? Then we will discuss two normal forms. The first one is Chomsky normal form, that is CNF. Then Greibach normal form, GNF, right? Then like like your pumping lemma for regular languages, here also we will discuss pumping lemma for context-free languages, right? Then we will discuss about equivalence of push-down automata and context-free grammar. पुशडाउन ऑटोमाटा हमने पढ़ाया था, ठीक है? तो पुशडाउन ऑटोमाटा का मतलब पुशडाउन ऑटोमाटा किस टाइप का लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? जैसे मैंने बताया था रेगुलर जो डीएफए वगैरह है, डीएफए, एनएफए, ये सब रेगुलर लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करते थे। तो सिमिलरली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पुशडाउन ऑटोमाटा किस टाइप के लैंग्वेजेस एक्सेप्ट कर रहा है। Your online class will be up to 45 and 50 minutes, not more than that, right? Then we will discuss Turing machine, the last part, or you can say the most important part of this subject. Okay, so this is all about the module 2 of your TFL subjects. So now I am starting your module 2, so please listen carefully. मैंने ये पहले मतलब अभी जो होली से पहले जो क्लास हुआ था उसमें भी मैंने ये डिस्कस किया था, ठीक है? ए ग्रामर जी कैन फॉर्मली रिटेन एज ए फोर टपल, मैंने बताया था। एन इज क्या होता है? एन इज द सेट ऑफ वेरिएबल्स और यू कैन से सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, मैंने बताया था। देन सेकेंड टी मतलब क्या था? मैंने जो बैकवर्ड में बताया था वो क्या था? ऐसे सिग्मा लेकर बताया था।
that is T is the set of terminal symbols or you can say input alphabet. ठीक है, then प्लीज ऐसे मैसेज में मत क्या करो, क्लास में सुनो बस। देन एस मैंने बताया था, एस इज द स्पेशल symbol known as start symbol, and remember that this S belongs to this N. That means S is a capital letter, right? Or you can say variable. Then P is nothing but P is the set of productions of the form alpha derives beta. मैंने क्लास में भी बताया था, ठीक है। जबकि अल्फा एंड बीटा बोथ may have any combination of these terminals and non-terminals, but remember that this alpha, that is the left hand side of any production, must contain a single, मतलब must contain at least a single variable. Single variable means single capital letter. ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। जैसे कभी भी अगर हम टीएफएल सब्जेक्ट में ग्रामर की बात करेंगे तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में 4 चीजें याद, मतलब दिमाग में आनी चाहिए। वो क्या है? पहले सेट ऑफ वेरिएबल्स, ये क्या थर्ड ईयर दूसरा दिन क्या है? ये थर्ड ईयर क्या है? मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रामर मतलब दिस इज ए 4 टपल एंड जिसमें क्या होता है, पहला होता है एन और यू कैन से भी एन, मैंने बताया था, जो कि सेट ऑफ वेरिएबल्स और यू कैन से सेट ऑफ कैपिटल लेटर्स व्हिच इज आल्सो नोन एज सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स, राइट? देन टी और यू कैन से सिग्मा इज नथिंग बट द सेट ऑफ टर्मिनल्स और यू कैन से इनपुट सिंबल्स। Then the third one is S or you can say start symbol, which is a special variable. Special variable मतलब इसी सेट में belongs कर रहा है, right? S is a capital letter, which is known as the start symbol. ठीक है? Then P is a set of productions. मैंने जैसे बताया था, प्रोडक्शन का फॉर्म कैसा होगा? एक अल्फा डिराइव्स बीटा फॉर्मेट में रहेगा। जबकि मतलब जिसमें कि अल्फा एंड बीटा both may contain the union of variables and टर्मिनल्स, मतलब कोई भी कॉम्बिनेशन वेरिएबल टर्मिनल का कोई भी कॉम्बिनेशन रह सकता है। बट रिमेंबर जो अल्फा जो होगा ना लेफ्ट हैंड साइड में, इसमें एटलीस्ट 1 वेरिएबल होनी चाहिए। ठीक, देन ना एग्जांपल ऑफ ए ग्रामर देखो, जैसे हम अगर याद होगा, हम जैसे डीएफए का तो टपल रिप्रेजेंटेशन करते थे, उसमें कैसे लिखते थे हम? जैसे कोई मशीन इक्वल टू ऐसे राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखते थे। पहले क्या लिखते थे? सेट ऑफ स्टेट्स को ब्रैकेट में लिखते थे, ये सब नॉट, देन कॉमा देके सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स को हम ब्रैकेट में, सॉरी कर्ली ब्रैकेट में लिखते थे। देन ट्रांजिशन फंक्शन, देन योर इनिशियल स्टेट, देन फाइनल स्टेट को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते थे, क्योंकि फाइनल स्टेट क्या होता है, मे बी मोर देन 1 हो सकता है। सिमिलरली हम ग्रामर को भी हम ऐसे टपल रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ग्रामर में क्या है, 4 पार्ट है। 4 पार्ट मतलब पहला पार्ट है सेट ऑफ वेरिएबल्स, देन सेकंड पार्ट क्या है, सेट ऑफ टर्मिनल्स, देन क्या है, स्टार्ट सिंबल, देन द सेट ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक, तो देखो जैसे मान लो अगर ग्रामर को हम, जैसे मान लो मेरे पास 2 प्रोडक्शन है, ऐसे 3 प्रोडक्शन है। S derives capital A followed by capital B, then A derives terminal A, then B derives terminal B. Remember यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट 1 वेरिएबल है, तो इसीलिए ये प्रोडक्शन है। अगर मैं ऐसे लिखता B मतलब टर्मिनल B derives capital B, ये प्रोडक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट 1 वेरिएबल नहीं है। ठीक, अभी देखो अगर टपल रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे मतलब क्या है, देखो तुम्हारे पास 3 प्रोडक्शंस हो गए, तो इससे क्या पता चल रहा है, इसमें वेरिएबल्स क्या क्या है? वेरिएबल्स मतलब कैपिटल लेटर क्या क्या है, एस, ए, देन बी, ये सब नॉट, ये तीनों है। तो देखो पहले कर्ली ब्रैकेट के अंदर एस ए बी लिख दिए, ठीक है। फिर कॉमा देने के बाद देखो ये राउंड ब्रैकेट में तो ऐसे लिखोगे, फिर कॉमा देने के बाद लिखो कि टर्मिनल्स कितने हैं। टर्मिनल्स मतलब
but a small case letter, or you can say input alphabet. Input alphabet क्या क्या है? A है and B है. क्यों? क्यों देखो यहाँ पे A है और B है, इसलिए उनको कॉमा देकर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखो. देन कॉमा, थर्ड कंपोनेंट. थर्ड कंपोनेंट क्या था? स्टार्ट वेरिएबल. तो देख सकते हो यहाँ पे स्टार्ट वेरिएबल एस को लिया गया है, यहाँ पे स्टार्ट सिंबल, और यू कैन से स्टार्ट वेरिएबल, जो कि ये सेट ऑफ टर्मिनल, सॉरी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स में बिलोंग्स करता है, और यू कैन से सेट ऑफ वेरिएबल्स में. तो यहाँ पे कॉमा देकर एस को लिख दिया. फिर कॉमा देने के बाद जितने भी प्रोडक्शंस हैं उन सबको कर्ली ब्रैकेट में लिखो. कितने प्रोडक्शंस से? एस डिराइव्स ए बी, देन ए डिराइव्स टर्मिनल ए, देन बी डिराइव्स टर्मिनल बी. सो इन तीनों को कॉमा करके लिख दो. फिर कर्ली ब्रैकेट में हो गया, ये सेट ऑफ प्रोडक्शंस हो गया. फिर उसके बाद राउंड ब्रैकेट देने के बाद ये हो गया ग्रामर. मतलब दिस इज ए सिंपल एग्जांपल. जैसे क्लियर लिखा गया है, एस एंड एस ए देन बी आर non-terminal symbols, or you can say variables. Then A and B are terminals. Terminals मतलब वही जो input alphabet, and S is the start symbol. Then this is the set of products. Then now, याद है मैंने डिस्कस किया था कि चॉम्स्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर. चॉम्स्की ने क्या किया था 1956 साल में? क्या किए थे उन्होंने? जितने भी जो ग्रामर है हमारे लैंग्वेज थ्योरी में या फिर थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में, उनको 4 पार्ट में डिवाइड किया था. जैसे मैंने बताया था उस क्लास में, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4. ठीक है. सो चॉम्स्की क्लासिफाइड द ग्रामर्स इनटू 4 कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज टाइप 0, then the second one is type 1, then third one is type 2, then fourth one is type 3. This is type 0 is your unrestricted grammar. Unrestricted grammar means what? इसमें जो प्रोडक्शंस होंगे, जो अल्फा टेंड्स टू डिराइव जो प्रोडक्शंस होंगे, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा. मतलब कोई किसी भी तरीके से प्रोडक्शंस हो सकते हैं, राइट? एंड सिमिलरली लैंग्वेज एक्सेप्टेड. देखो लैंग्वेज क्या होता है? अगर तुम्हारे पास ग्रामर है, देन उसका कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज कैसे फाइंड करते थे हम? लैंग्वेज इज नथिंग बट द सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जनरेटेड फ्रॉम द ग्रामर. यस और नॉट? सो भाई मतलब इस अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर और यू कैन से टाइप 0 ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होगा वो किस टाइप का लैंग्वेज होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज. रिमेंबर दिस, एग्जाम में आ सकते हैं. टाइप 0 से जो ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगा वो क्या होगा? रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज. एंड रिमेंबर, कौन सा मशीन इस टाइप 0 ग्रामर ये रिकर्सिवली लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? देखो ये हो गया ग्रामर. इस ग्रामर का मतलब दूसरा नाम है अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर. ठीक है. टाइप 0 ग्रामर को अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर हम बोल सकते हैं. फिर इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगा उसको हम रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज कहते हैं. ठीक. फिर रिमेंबर, जब कोई भी लैंग्वेज होता है उसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई एक ऑटोमेशन होनी चाहिए. जैसे मैंने बताया था फाइनाइट ऑटोमेटा, और यू कैन से डीएफए, एनएफए, ये सब कौन से लैंग्वेज एक्सेप्ट करते थे? वो सब रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते थे. यस और नॉट? सिमिलरली इसी लैंग्वेज को कौन सा ऑटोमेशन एक्सेप्ट करता है? ट्यूरिंग मशीन. रिमेंबर दिस. ठीक है. देन नेक्स्ट टाइप इज टाइप 1 ग्रामर. टाइप 1 ग्रामर को हम दूसरे नेम से कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर भी कहते हैं. और फिर द कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगा उसको क्या कहेंगे हम? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज कहेंगे. फिर कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को कौन सा ऑटोमेशन एक्सेप्ट करता है? रिमेंबर दिस, लिनियर बाउंडेड ऑटोमेटा. ठीक. सिमिलरली अब नेक्स्ट ग्रामर टाइप है टाइप 2 ग्रामर. टाइप 2 ग्रामर को हम क्या कहते हैं? मतलब उसका दूसरा नाम है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. एंड जो भी इस ग्रामर से जो भी लैंग्वेज जनरेट होते हैं उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज. देन रिमेंबर, कौन सा ऑटोमेशन कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है? रिमेंबर, पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हमने इंट्रोडक्शन किया था, मतलब 1-2 प्रॉब्लम्स किए थे. हम अभी इस मॉड्यूल पे हम डिटेल तरीके से इसके बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है. रिमेंबर मतलब फिर नेक्स्ट द लास्ट और यू कैन से मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड वन इज टाइप 3 ग्रामर, जिसको हम रेगुलर ग्रामर भी कहते हैं. हमने पढ़ा भी था. और इस रेगुलर ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होते हैं ऑब्वियसली वो रेगुलर लैंग्वेज होंगे. एंड रेगुलर लैंग्वेज को कौन सा ऑटोमेशन एक्सेप्ट करता है? योर फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा, दैट इज डीएफए, एनएफए, ये सब रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है. सो रिमेंबर
जैसे रेगुलर लैंग्वेज को डीएफए एनएफए सब एक्सेप्ट करते थे, सिमिलरली कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज को पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, इन ट्यूरिंग मशीन और रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होते हैं और यू कैन से रिकर्सिवली एन्यूमरेबल लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है। नाउ चॉम्स्की क्लासिफिकेशन को हम डायग्रामेटिकली कैसे हम शो करेंगे, ऐसे देख सकते हो। तो टाइप 0 है वो सुपरसेट है, ठीक है, मतलब देख सकते हो यहाँ पे टाइप 3 इज ए सबसेट ऑफ टाइप 2, टाइप 2 इज ए सबसेट ऑफ टाइप 1, टाइप 1 इज ए सबसेट ऑफ टाइप 0। मतलब जैसे हम टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 की ओर हम मूव करेंगे, हमारा जो ग्रामर होगा क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड, मोर रेस्ट्रिक्टेड होता हुआ जाएगा। जैसे मैंने बताया था टाइप 0 क्या था, अनरेस्ट्रिक्टेड था, मतलब इसमें कुछ भी हम रेस्ट्रिक्शन नहीं डालते थे प्रोडक्शन में। लेकिन जब टाइप 1 कैसे मिलेगा हमें, अगर टाइप 0 पे हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाल देंगे देन हमें टाइप 1 ग्रामर मिलेगा। अब सिमिलरली टाइप 1 पे अगर कुछ रेस्ट्रिक्शन डाल देंगे फर्दर देन हमें टाइप 2 मिलेगा, देन टाइप 2 में अगर फर्दर हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे देन हमें टाइप 3 ग्रामर मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो इससे क्या पता चल रहा है, टाइप 3 इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, ठीक है, एंड टाइप 0 इज द अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर। देखो वही अगेन लिखा गया है, तो ये इसको इस हायरार्की को याद रखना, ठीक है। टाइप 3 इज द मतलब सबसे मतलब रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर होता है, ठीक है। एंड देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर को कौन रिकॉग्नाइज करता है, या फिर कौन एक्सेप्ट करता है, ट्यूरिंग मशीन। देखो ग्रामर को एक्सेप्ट करने का मतलब ये है कि इस ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होती है उस लैंग्वेज को ये जो ऑटोमेशन एक्सेप्ट करता है। सिमिलरली टाइप 1 को हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर कहते हैं, टाइप 1 ग्रामर को, एंड कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होता है वो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज होता है, उसको कौन एक्सेप्ट करता है, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, उसको लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा एक्सेप्ट करता है। Similarly, type 2 grammar is also known as context-free grammar, and the corresponding language is context-free language, and context-free language is accepted by push-down automata, which we will discuss in coming classes. Then next, the last and the most restricted one. Remember, type 3 is your most restricted one. Most restricted one means इसका जो प्रोडक्शंस होंगे वो काफी सिंपल्स होंगे, उसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाल दिए जाएंगे, ठीक है। So टाइप 3 ग्रामर को हम रेगुलर ग्रामर भी कहते हैं, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग लैंग्वेज को जो एक्सेप्ट करता है वो ऑटोमेशन को हम क्या कहते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा, दैट इज डीएफए एनएफए ये सब, ठीक। ना देखो हम अभी रिवर्स साइड से एक-एक करके जाएंगे, ठीक है। बट नाउ वी विल डिस्कस टाइप 3 ग्रामर। मैंने जो बताया था टाइप 3 ग्रामर क्या है, टाइप 3 ग्रामर इज द मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड वन, राइट। मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड वन मींस इसके जो प्रोडक्शंस होंगे वो काफी सिंपल होंगे। सिंपल क्यों होंगे? सिंपल इसलिए होंगे क्योंकि सिंपल होंगे इसका मतलब देखो जैसे हम पहले जैसे मैंने बताया था कि हमारे जो प्रोडक्शंस होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, ऐसे अल्फा डिराइव्स बीटा फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो अल्फा एंड बीटा जो है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स यूनियन योर इनपुट अल्फाबेट होता था, और यू कैन से सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स यूनियन सेट ऑफ टर्मिनल्स, मतलब एनी कॉम्बिनेशन होता ना, मतलब इसमें काफी लंबा इसमें काफी बड़ा हो सकता था। लेकिन इसमें एक तो रिस्ट्रिक्शन ये था ना कि जो अल्फा जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो कंपोनेंट होगा उसमें एटलीस्ट वन वेरिएबल होगा, यहाँ तक क्लियर था। लेकिन अब जैसे देखो ये अगर इसके ऊपर ये अनरेस्ट्रिक्टेड था, अगर हम इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई करेंगे अल्फा और बीटा के ऊपर, मतलब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शंस मतलब मैं बोलूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में दो वेरिएबल्स ही हो सकते हैं या सिंगल वेरिएबल हो सकता है, इसी टाइप का मतलब रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो इसी टाइप का रेस्ट्रिक्शन डाल के हम डिफरेंट ग्रामर फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ योर टाइप 3 ग्रामर, और इसको क्या कहते हैं हम, सीधा मोस्ट रेस्ट्रिक्टेड ग्रामर, क्योंकि इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो रहे थे। रिमेंबर टाइप 3 grammars generate regular languages, you all know it, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था। Remember type 3 grammars must have a single terminal on the left hand side, and a right hand side consists of a single terminal or single terminal followed by a single non terminal। इसी लाइन का मतलब समझो, इस लाइन का मतलब क्या है, टाइप 3 ग्रामर में देखो, रिमेंबर जब भी मैं ग्रामर की बात करता हूं दैट मींस सेट ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं,
प्रोडक्शन को लेकर ही हम ग्रामर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम कोई ग्रामर की बात करते हैं मतलब वी विल डिफाइन इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शंस, ठीक है। तो देखो टाइप 3 ग्रामर में किस टाइप के प्रोडक्शन से अलाउड है, देखो उस टाइप के प्रोडक्शन से अलाउड है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ओनली ए सिंगल नॉन टर्मिनल। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लाइन। Left hand side, that means left hand side of all the productions of type 3 grammar contain a single variable। मतलब लेफ्ट से अल्फा डिराइव्स बीटा, अगर मेरे पास कोई प्रोडक्शंस होगा मतलब अल्फा में क्या होगा, ओनली ए सिंगल वेरिएबल रहेगा। सिंगल वेरिएबल रहेगा मतलब सिंगल नॉन टर्मिनल रहेगा मतलब सिंगल कैपिटल लेटर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। इज दैट क्लियर? अब देखो राइट हैंड साइड की बात। राइट हैंड साइड कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल टर्मिनल। सिंगल टर्मिनल मतलब क्या है, सिंगल इनपुट सिंबल, जैसे मान लो ए बी या फिर 0 1 जो भी है सिंगल रहेगा, इधर सिंगल रहेगा, या फिर ए सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय ए सिंगल नॉन टर्मिनल। मतलब एक सिंगल इनपुट मतलब इनपुट सिंबल रहेगा, उसके बाद एक कैपिटल लेटर रहेगा। कैपिटल लेटर मतलब जो होगा हमारा नॉन टर्मिनल। जैसे देखो एग्जांपल देखो, इसी फॉर्मेट में रहेगा। कैपिटल लेटर डिराइव्स ए स्मॉल केस लेटर और यू कैन से इनपुट अल्फाबेट, और ए कैपिटल लेटर डिराइव ए इनपुट अल्फाबेट फॉलोड बाय ए कैपिटल लेटर। इसी फॉर्मेट में ही रहेंगे प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में क्या देखो क्लियरली इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, एक्स वाई मस्ट बी नॉन टर्मिनल और यू कैन से एक्स वाई मस्ट बी वेरिएबल्स, एंड देन योर ए, यहाँ पे ए definitely belongs to your terminal or you can say input alphabet। इसके साथ साथ इसी लाइन को भी याद करो। The rule S derives epsilon or S derives null is allowed if S does not appear on the right hand side of any rule। इसका मतलब मेरे जो सेटअप प्रोडक्शंस होंगे, अगर कोई भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में अगर S नहीं है, रिमेम्बर राइट हैंड साइड मतलब जो ए वाई जो है, मतलब अगर कहीं पे भी सम इनपुट अल्फाबेट फॉलोड बाय अगर एस नहीं है, देन मैं एस डिराइव्स नल को इस ग्रामर में ऐड कर सकता हूं। ठीक है, इस लाइन का मतलब वही है। द रूल एस डिराइव्स नल। देखो एस मतलब क्या है, ये एस होता है स्टार्टिंग सिंबल। ऐसे कोई नॉर्मल वेरिएबल से नल नहीं रहेगा, रिमेम्बर दिस। जैसे मान लो मेरा अगर यहाँ पे मान लो एक्स वाई है, यहाँ पे वाई डिराइव्स नल कभी भी नहीं रहेगा, कतई भी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वाई इज नॉट द स्टार्ट सिंबल। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि अगर तो स्टार्ट सिंबल कोई है तो स्टार्ट सिंबल विल डिराइव नल। इस टाइप का प्रोडक्शन किस केस में रहेगा, अगर मेरा कोई भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में एस नहीं आ रहा हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ये एग्जाम्पल है, एक्स डिराइवनल। देखो ये एक्स डिराइवनल इसलिए रहेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स डिराइव, जैसे देखो एक्स डिराइव्स ए टर्मिनल। ठीक है, ये रहेगा मेरा, ये टाइप 3 ग्रामर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक्स इज ए वेरिएबल एंड ए इज योर टर्मिनल। हाँ, मैं पूरा ठीक हूँ, मुझे कोई मतलब कोरोना कुछ नहीं हुआ है, तो जुकाम हो गया। So x derives a, that means x derives a terminal। yes, देखो ये ना दिस इज और सिंबल। और सिंबल मतलब जैसे मान लो हमारे पास मान लो कोई एक प्रोडक्शन है, a derives मान लो स्मॉल a एंड a derives मान लो स्मॉल a फॉलोड बाय कैपिटल B। तो इसको हम ये दो, देखो ये जो दो प्रोडक्शन है, इस दो प्रोडक्शन को मैं एक ही लाइन में कैसे लिख सकता हूँ। देखो दोनों लेफ्ट ए से डिराइव हो रहे हैं, तो इसको कैसे लिखूंगा, ए डिराइव्स स्मॉल ए देन और सिंबल। ठीक है, और सिंबल होता है, देन एक को लिखने के बाद दूसरा भी आएगा, उसको लिख लेना है, ए फॉलोड बाय कैपिटल। ठीक, तो ए डिराइव्स
टर्मिनल ए फॉलोड बाय कैपिटल बी। देखो जब मैं फॉलोड बाय की बात कर रहा हूँ, एक इनपुट अल्फाबेट के बाद कोई एक वेरिएबल रहेगा, इसी फॉर्मेट में रहेगा। तो देखो सबसे पहले देख लो यहाँ पे x डिराइव्स a है एंड x डिराइव्स ay है, ठीक है, x डिराइव्स a है एंड x डिराइव्स ay है। एंड देखो राइट हैंड साइड में मेरा x नहीं है, देखो कहीं पे भी राइट हैंड साइड में x है नहीं है, सो x डिराइव्स नल भी इसमें रह सकता है। इसी लाइन का मतलब तो यही था ना कि s डिराइव्स, s मतलब स्टार्ट सिंबल, यहाँ पे x मेरा स्टार्ट सिंबल था, तो स्टार्ट सिंबल डिराइव्स नल तभी अलाउड कर सकते हैं अगर मेरा स्टार्ट सिंबल राइट हैंड साइड में नहीं है। तो देखो यहाँ पे x मेरा कहीं पे भी राइट हैंड साइड में नहीं है, तो x डिराइव्स नल में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे कैपिटल Y डिराइव्स टर्मिनल B, ये भी टाइप 3 ग्रामर में आएगा क्योंकि कैपिटल लेटर डिराइव्स स्मॉल केस लेटर। ये वाला केस आया, राइट हैंड साइड कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टर्मिनल, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में जो भी रहेगा उसको हम मतलब इसी फॉर्मेट में जो भी प्रोडक्शंस रहेंगे उस प्रोडक्शन से जो ग्रामर जनरेट होगा उसको हम टाइप 3 ग्रामर कहेंगे। Now we will move to type 2 grammar. Listen it carefully. These are very important for your coming lectures. I'm just coming within 10 seconds. I'm just bringing my water bottle. Next, I'm sorry. So now we will discuss about the next type of grammar, that is type 2 grammar. And remember, type 2 grammars generate context-free languages. ये मैंने बताया था पहले। And remember, ग्रामर मतलब क्या है? जब प्रोडक्शंस होंगे तो प्रोडक्शन से ग्रामर को जनरेट करते हैं, राइट? सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई ग्रामर की बात करते हैं हम डिफाइन करते हैं कि उसमें जो प्रोडक्शंस होंगे वो किस टाइप के मतलब होंगे, ठीक है। देखो, द प्रोडक्शंस ऑफ टाइप 2 ग्रामर आर ऑफ द फॉर्म ए वेरिएबल, ठीक है, ए वेरिएबल डिराइव सम गामा। कोई गामा क्या होगा, देखो ये तो क्लियर हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल होगा, ये सब ना, तो इसे लिखा ए बिलोंग्स टू एन, और यू कैन से नॉन टर्मिनल, और यू कैन से वेरिएबल। देन द राइट हैंड साइड क्या हो सकता है, राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल्स का कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये समझ में आ रहा है ना, टी मतलब टर्मिनल मतलब स्मॉल केस लेटर, और यू कैन से इनपुट अल्फाबेट, एंड एन इज योर नॉन टर्मिनल, और यू कैन से द वेरिएबल्स, ठीक है। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन का कोई भी स्ट्रिंग आ जाए तो वो राइट हैंड साइड में रह सकता है। तो क्लियर। तो टाइप 2 ग्रामर देखो, टाइप 0 ग्रामर में क्या रेस्ट्रिक्शन था टाइप 3 ग्रामर में, कि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली ए सिंगल वेरिएबल होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में क्या होगा, ओनली ए सिंगल मतलब सिंगल टर्मिनल रह सकता है, और यू कैन से सिंगल अल्फाबेट रह सकता है, या फिर ए सिंगल अल्फाबेट फॉलोड बाय सम
कैपिटल लेटर रह सकता है। लेकिन देखो टाइप 2 ग्रामर में क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में बस सिंगल वेरिएबल रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर इनपुट अल्फाबेट एंड इनपुट अल्फाबेट मतलब टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल रह सकता है। मतलब क्लियरली टाइप 3 ग्रामर से टाइप 2 ग्रामर थोड़ा कम रेस्ट्रिक्टेड है, ये सब नॉट, क्योंकि टाइप 3 में क्या था, राइट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल होता था, लेकिन टाइप 2 में सॉरी टाइप 3 ग्रामर में क्या होता था, राइट हैंड साइड में एक सिंगल टर्मिनल रहता था फॉलोड बाय एक सिंगल वेरिएबल रहता था या फिर सिंगल टर्मिनल होता था। लेकिन टाइप 2 ग्रामर में क्या हुआ, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है राइट हैंड साइड में क्या हो सकता है, मतलब राइट हैंड साइड में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल, राइट। तो वही देखो ये क्लियर हुआ कि टाइप 2 ग्रामर में एक जो प्रोडक्शंस होंगे वो कैसे होंगे, एक वेरिएबल डिराइव्ड सम गामा होगा, जिससे कि गामा में क्या हो सकता है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स हो सकता है, ठीक है। These languages generated by the grammar are to be recognized by non-deterministic push-down automata। तो ये मैंने क्लियरली बताऊंगा मैं ये क्या है। तो रिमेंबर टाइप 2 ग्रामर से जो लैंग्वेजेस जनरेट होंगे उसको कौन एक्सेप्ट करेगा, पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा, ठीक। अब देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स ऑफ टाइप 2 ग्रामर देखो, ए वेरिएबल डिराइव्स, देखो यहाँ पे ये एग्जांपल है क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में ओनली सिंगल वेरिएबल होगा, ये तो मैंने बताया था, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल था, लेकिन राइट हैंड साइड में देखो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स रह सकता है। देखो यहाँ पे कैपिटल एक्स फॉलोड बाय टर्मिनल ए, यहाँ पे देखो टर्मिनल ए, यहाँ पे देखो टर्मिनल ए फॉलोड बाय एक वेरिएबल एक्स, यहाँ पे देखो 3 टर्मिनल से, यहाँ पे देखो एक्स डिराइव्स नल, मतलब यहाँ पे कोई भी एनी कॉम्बिनेशन, देखो यहाँ पे स्टार लगाया गया है मतलब एप्सिलॉन भी आ सकता है, राइट। तुषार तू होस्ट बन गया। हाँ मैं यूज्ड टू। पढ़ा चल पढ़ा। मास्टर साहब कहाँ गए रे? ओ तुषार, सही है, टाइप 2 ग्रामर चल रही है। सही है तुषार, सही है। मास्टर साहब कहाँ गए रे? अरे चुप हो जा, लगा पढ़ो ली। रिमूव कर दो इसको, देखो ऐसा ना मास्टर ही निकाल दो यार। ऑफलाइन तो पढ़ा नहीं जा, ऑनलाइन जब पढ़ा है। अरे शिवम भैया कैसो है? बढ़िया भैया, बढ़िया। जिंदगी कैसी चल रही है? बस कट रही है। अरे कट चौ रही है, जमा तो दुख खत्म है होगा रे। आई एम सॉरी वो मैं सिस्टम शट डाउन हो गया था।
इट्स ओके सर। देखो ये टाइप 2 ग्रामर सबको समझ में आ गया, जिसमें इसमें क्या है, बस एक मतलब इसमें क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में बस ओनली सिंगल वेरिएबल होगा, लेकिन राइट हैंड साइड में एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स होंगे। एनी कॉम्बिनेशन की जब बात करी मतलब कोई भी वेरिएबल के राइट हैंड साइड में एप्सिलॉन भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार है। ठीक, तो now we will move to the next type of grammar, that is type 3 grammar, sorry, type 1 grammar. Now remember type 1 grammar. Type 1 grammars generate context sensitive languages, ये मैंने बताया था। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे कि टाइप 1 ग्रामर में किस टाइप के प्रोडक्शंस होंगे। ठीक है, सो रिमेंबर द प्रोडक्शंस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, देखो इसी फॉर्मेट में होंगे जितने भी प्रोडक्शंस होंगे हमारे मतलब टाइप 1 ग्रामर में, उनका जो मतलब किस टाइप का होगा। देखो सम अल्फा फॉलोड बाय ए वेरिएबल फॉलोड बाय सम बीटा derives alpha followed by some gamma then followed by some beta। रिमेंबर यहाँ पे क्या है, ये ए तो तुम्हें बताया था ये कैपिटल लेटर होना चाहिए, एंड रिमेंबर दिस अल्फा बीटा एंड जो गामा जो है वो एनी कॉम्बिनेशन ऑफ योर वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स हो सकते हैं। बट रिमेंबर यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन ये है, ये जो गामा है ना, ये गामा कभी भी एम्प्टी नहीं होगा। मतलब समझ रहे हो, मतलब कोई भी प्रोडक्शन है जिससे किस फॉर्मेट में होंगे, सम अल्फा मतलब सम कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब कुछ भी होंगे, लेकिन उसके बाद एक वेरिएबल होगा कैपिटल लेटर होगा, उसके बाद एनी फिर से अगेन बीटा मतलब कोई कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स होंगे। वो क्या डिराइव करेंगे, वो सम डिराइव करेंगे किस फॉर्मेट में होगा, वो भी क्या होगा, ये जो भी अल्फा था वो सेम अल्फा यहाँ पे रहेगा, उसके बाद सम गामा होगा, सम गामा मतलब सम कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल होंगे, बट रिमेंबर ये नल नहीं होगा। उसके बाद सम बीटा होगा, सम बीटा मतलब यहाँ पे जो बीटा था लेफ्ट हैंड साइड में जिस फॉर्मेट में था उसी फॉर्मेट में ही यहाँ पे बीटा आएगा। ठीक, रिमेंबर एक क्या होगा, एक टर्मिनल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, कैपिटल लेटर होनी चाहिए, एंड वही अल्फा बीटा गामा मस्ट बी बिलोंग्स टू द belongs to any combination of your terminal मतलब capital letter and small case letters, that is your input alphabet। Remember the string alpha and beta may be empty, मतलब ये जो अल्फा एंड बीटा जो है ये एम्प्टी हो सकते हैं, लेकिन ये गामा कभी एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, ये लाइन क्लियर हुआ। एंड रिमेंबर अगेन जैसे मैंने रेगुलर लैंग्वेज की बात करी थी, दैट मींस टाइप 3 की बात करी थी, द रूल एस डिराइव्स नल इज अलाउड। देखो ये जब हम एस की बात करते हैं ना उस टाइम पे स्टार सिंबल की बात करते हैं। ठीक है, रिमेंबर स्टार सिंबल क्या होता है, वो एक ऐसा सिंबल होता है मतलब उससे जो भी प्रोडक्शंस जनरेट होते हैं उसी प्रोडक्शन को हम पहले यूज करेंगे, ये मैं बताऊंगा आगे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और जनरली क्या होता है, जो भी हम लैंग्वेज की बात करते हैं मतलब क्या सेट ऑफ स्ट्रिंग्स की बात करते हैं, मतलब कोई भी प्रोडक्शन से हम जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट कर पाएंगे वो सब होगा उस कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्शन का लैंग्वेज होगा। एंड फिर जो स्ट्रिंग्स जनरेट करते हैं वो स्ट्रिंग कैसे एक्चुअली जनरेट करते हैं, वो हम सम प्रोडक्शन से अप्लाई करके जनरेट करते हैं। तो वहां पे कौन सा प्रोडक्शन पहले जनरेट करते हैं, वही जो प्रोडक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में कैपिटल एस है उन्हीं प्रोडक्शन को पहले यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही देखो लाइक योर टाइप 3 ग्रामर एस डिराइव्स नल इज अलाउड इफ एस डज नॉट अपीयर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल। मतलब कोई भी प्रोडक्शन के राइट हैंड साइड में अगर एस नहीं है कहीं पे भी, देन ओनली एस डिराइव्स नल। एक प्रोडक्शन टाइप 1 ग्रामर में अलाउड हो सकता है। ठीक है, वही लास्ट लाइन वही है, द लैंग्वेजेस
जनरेटेड बाय दिस ग्रामर्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। जैसे मैंने बताया था टाइप 1 ग्रामर से जो लैंग्वेज जनरेट होगा वो लैंग्वेज क्या होगा, वो लैंग्वेज होगा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज। एंड मैंने बताया था कौन सा ऑटोमेशन कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है या फिर रिकॉग्नाइज करता है, वो है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक, अब देखो एग्जांपल देखो, कैपिटल ए फॉलोड बाय कैपिटल बी डिराइव्स कैपिटल ए फॉलोड बाय टर्मिनल बी फॉलोड बाय वेरिएबल बी फॉलोड बाय वेरिएबल सी। देखो अब अगर इसी फॉर्मेट में अगर हम लोगे लेके, देखो यहाँ पे अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा यहाँ पे नल हो गया, ठीक है, अल्फा कुछ नहीं नल, देन ये कैपिटल बी हुआ, देन इसके बाद क्या हो, कैपिटल बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बन गया। लेकिन देखो अब अगर बीटा बनाएंगे तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगा, एक्सट्रीम राइट हैंड में भी कैपिटल बी होना चाहिए था, लेकिन इसी फॉर्मेट में नहीं है। तो इसी फॉर्मेट में रखना है, मतलब देखो यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में ए है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में ए है। इसका मतलब क्या है, इसी फॉर्मेट में है कि नहीं, ये जो अल्फा हुआ ये अल्फा भी यहाँ पे हुआ, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल ए मेरा अल्फा हो गया। ठीक, अब देखो उसके बाद बी है, बी को हम कैपिटल वेरिएबल के ले जाते हैं, फिर इसके बाद जो भी जितने भी हुआ, देखो जितने भी हुआ हम उसको क्या करेंगे, गामा के हिसाब से ले जाएंगे। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल बी फॉलोड सॉरी टर्मिनल बी फॉलोड बाय वेरिएबल बी फॉलोड बाय टर्मिनल सी जो है, ये मेरा किस हिसाब से एक्ट कर रहा है, यहाँ पे गामा के हिसाब से एक्ट कर रहा है। अब इसके बाद देखो बी के बाद कुछ है नहीं, मतलब ये बीटा यहाँ पे एम्प्टी हो गया। एंड रिमेंबर यहाँ पे बीटा तो एम्प्टी हो भी सकता है, ये सब नॉट, सो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो बीटा वैल्यू है यहाँ पे भी वो नल हो गया। ठीक, तो ये मेरा ये एक एग्जांपल बन गया। एंड अगेन ये तो ऐसे ही बनेगा, कैपिटल ए मतलब यहाँ पे अल्फा एम्प्टी है, बीटा भी एम्प्टी है, ए डिराइव्स बी सी है, मतलब यहाँ पे गामा हो गया, क्या ये बी टर्मिनल बी फॉलोड बाय टर्मिनल सी फॉलोड बाय कैपिटल ए। ठीक है, सिमिलरली बीटा डिराइव्स बी स्मॉल बी सॉरी कैपिटल बी डिराइव्स स्मॉल बी, ये भी इसमें आ सकता है। क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे अल्फा एंड बीटा नल हो गया, यहाँ पे ये सब नल अल्फा एंड बीटा नल हो गया। यहाँ पे ये जो कैपिटल बी था वो कैपिटल ए की तरह काम किया, और राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ये नल था मतलब ये दोनों भी उड़ गए, और यहाँ पे जो बी जो था ये बी यहाँ पे आएगा। ठीक, तो ये हो गया टाइप 1 ग्रामर। देन नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप 0 ग्रामर। जैसे मैंने बताया था कि ये अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है ये। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रामर है मतलब ऑल द प्रोडक्शन बस इसी फॉर्मेट में रहेंगे, अल्फा डिराइव्स बीटा फॉर्मेट में रहेंगे, जबकि अल्फा में एटलीस्ट एक सिंगल वेरिएबल रहना जरूरी है। राइट, समझ, ये तो मैंने पहले ही बताया था, टाइप 0 ग्रामर जनरेट रिकर्सिवली एनुमरेबल लैंग्वेजेस। ठीक है, द प्रोडक्शंस हैव नो रिस्ट्रिक्शंस, मतलब किसी भी वे में प्रोडक्शंस हो सकते हैं, जैसे अल्फा डिराइव्ड बीटा फॉर्मेट में होंगे। रिमेंबर बस जो नॉर्मल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, मतलब जो उसका जो मेन प्रॉपर्टी क्या था, तो लेफ्ट हैंड साइड में ना एटलीस्ट एक सिंगल वेरिएबल मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल होना जरूरी होता था। ठीक है, तो बस वही वो तो प्रोडक्शन का रूल ही है, तो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। लेकिन ये अल्फा एंड बीटा में कोई भी हो सकता है, कुछ रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है। दे आर एनी फेस स्ट्रक्चर ग्रामर इंक्लूडिंग ऑल फॉर्मल ग्रामर। जैसे मैंने फेस स्ट्रक्चर ग्रामर मतलब नॉर्मल ग्रामर होता है हमारे लैंग्वेज थ्योरी सब्जेक्ट में। ठीक है, तो मतलब ऑल द प्रोडक्शन जो भी प्रोडक्शन से आएगा, जो वैलिड प्रोडक्शन मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में एटलीस्ट एक सिंगल मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल होना चाहिए, देन ओनली हम उसको वैलिड प्रोडक्शन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जब मैं प्रोडक्शन की बात करी थी, अल्फा डिराइव्स बीटा की बात करी थी, तो उस टाइम पे मैंने क्लियरली बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल होना जरूरी है। ठीक है, तो एक वेरिएबल नहीं रहा मतलब वो वैलिड प्रोडक्शन नहीं हुई। तो यहाँ पे द प्रोडक्शंस कैन बी ऑफ द फॉर्म अल्फा डिराइव्स बीटा, फिर अल्फा इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल्स विथ एटलीस्ट वन टर्मिनल। ये क्लियर हुआ कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्शन में मतलब एटलीस्ट एक सिंगल वेरिएबल रहना जरूरी है, एटलीस्ट एक वेरिएबल रहना जरूरी है। एंड अल्फा कैन नॉट बी नल, ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड का भी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बीटा इज स्ट्रिंग ऑफ टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल, मतलब बीटा कुछ भी हो सकता है, या अल्फा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या कंडीशंस है, मतलब जो प्रोडक्शन में क्या कंडीशन है, कोई भी प्रोडक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, एटलीस्ट एक सिंगल वेरिएबल मतलब एटलीस्ट एक वेरिएबल रहेगा, एंड वो नल कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नल डिराइव समथिंग, ये कैसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो एग्जांपल देख सकते हो, कोई भी एग्जांपल डाल दो, प्रोडक्शन डाल दो, वो टाइप 0 ग्रामर में आएगा। देखो यहाँ पे कैपिटल एस डिराइव समथिंग, कैपिटल बी फॉलोड बाय सम सी डिराइव समथिंग,
कैपिटल सी फॉलोड बाय कैपिटल बी, मतलब इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, वेरिएबल सी वेरिएबल बी, और कैसे टर्मिनल सी देन टर्मिनल बी, सॉरी नॉन टर्मिनल सी देन नॉन टर्मिनल बी डिराइव्स नॉन टर्मिनल डी देन नॉन टर्मिनल बी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो टर्मिनल ए फॉलोड बाय नॉन टर्मिनल डी डिराइव्स टर्मिनल सॉरी नॉन टर्मिनल डी फॉलोड बाय टर्मिनल बी। और रिमेंबर जो लेफ्ट हैंड साइड में है ना, एटलीस्ट एक सिंगल वेरिएबल रहना, मतलब एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर होना चाहिए एंड लेफ्ट हैंड साइड कभी नल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये था टोटल जो टाइप ऑफ ग्रामर की बात थी, and I will continue this context free grammar from the next class. If you have any doubt you can ask me. समझ में आया सबको? Yes, sir. Okay, so from the next class onwards I will start context free grammar and I hope online class भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा सब भी डाउट वगैरह सब क्लियर करूंगा। एंड आफ्टर completion of a particular chapter or you can say particular topic मैं ये स्लाइड शेयर कर दूंगा। ठीक है, Okay. so I am leaving today's class. Good luck. ऋषभ सारस्वत तू तो नहीं सुधरेगा। सर ये क्लासेस ऑनलाइन कब तक चलेगी? बालक ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी तो चाहता हूँ ऑफलाइन क्लास हो, मुझे ऑनलाइन में मजा नहीं आ रहा है, लेकिन काफी मुश्किल के साथ भी मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यस सर। मैं ऑफलाइन क्लास ही प्रेफर करता हूँ। और सर अगर एग्जाम क्या होगा सर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? एग्जाम तो मुझे लग रहा है ऑफलाइन ही होगा, क्योंकि जैसे हॉस्टलर्स तो है ही कॉलेज में, तो Yes, फिर sir. बाकी जो भी बच्चे आएंगे मतलब तुम लोगों को तो बुला के एग्जाम ले सकते हैं। सर ये पढ़ा रहे हैं सर ऑनलाइन और एग्जाम सर ऑफलाइन। कोई बात सर नहीं, उस मैं टाइम अच्छे से पर पढ़ाऊंगा कोरोना ना। नहीं होगा? क्या सर उस टाइम पर कोरोना नहीं होगा एग्जाम के टाइम पे? अभी हो रहा है। बालक ये मैं कैसे कह नहीं, सकता हूँ? कोरोना और डे स्कॉलर से नहीं होगा, हॉस्टलर से ही होगा बस। सर एक बात बताइए, जितनी भी फैकल्टी है क्या वो जीएलए के अंदर रहती हैं? नहीं तो मैं भी तो बाहर रहता हूँ। सर उनके आने से कोरोना नहीं हो रहा कॉलेज में, डे स्कॉलर्स के आने से ही होगा। नहीं एक्चुअली इतने सारे बच्चे हैं ना, तो शायद मॉनिटर नहीं हो पाएगा, इसीलिए शायद ये कर रहे हैं। तो 10-15 दिन के बाद आशा है कि शायद ऑफलाइन हो जाए। अभी कोरोना स्पाइक ज्यादा हो गया ना, अभी लाखों में Yes, sir. केसेस आ रहे हैं, इसीलिए। ओके सर। चलो फिर आई एम आप क्लोजिंग कैसे हो टुडे सर? सेशन। खुश रहो सब। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा जुकाम हो गया है बस। ओके, तो नहीं है सर। थैंक यू। सर चेकअप करा लीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो मास्क पहन के रहे ना। हाँ मैं मास्क हमेशा मेरे गले में रहता है, कुत्तों के गले में नहीं सर, कुत्तों के गले में जैसे बेल्ट रहता है ना, उसी टाइप। ठीक है, ओके, गले में नहीं होना चाहिए। आई एम क्लोजिंग टुडेस क्लास।